So today's topic is double entry system. Okay. डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सो डबल एंट्री सिस्टम में है क्या, एज यू नो दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू aspect, one is to be debited and other one is to be credited by their respective. But before debit and credit, we must know there are how many types of account, because the rule is applied on the types of account. So we must know there are how many types of accounts. So today's topic is first of all types of account. Okay. So types of account, so generally we call there are two types of account. One is personal, okay, पर्सनल अकाउंट। अब आप बताओ कि जो पर्सनल नहीं है दैट विल बी कॉल्ड इम्पर्सनल, ओके। दिस मीन्स वन इज पर्सनल, अदर वन इज इम्पर्सनल। बट impersonal account further classified into two subpart, so you should note it. 1 minute. One is real account and second one is nominal account, okay. So okay students, so now types of account, one is personal and second one is impersonal, but generally the rule is applied separately on each kind of account whether it is sub part or part. So we can call it, there are three types of account. First one is personal, second one is real, and third one is nominal, because the major category is personal and impersonal, because one is personal and second is not personal, so it will be called impersonal, okay. So now it is clear कि there are how many types of account, personal, real and nominal account, okay. Now further, personal account has been classified into three parts. One is natural personal account, okay. Second one is artificial personal account, okay. And third one is representative personal account, okay. So personal account has been further classified into three parts: natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Now come to the real account. So real account includes, one is tangible assets, second one is
इनटेंजिबल एसेट्स। अब इसको और हम थोड़ा सा okay. So real account includes two types of asset. One is tangible and the second one is intangible. Done. Now come to the nominal account. Everything I'll be explaining, and tangible intangible already in second chapter I have taught, but again little bit I'll be describing about each. So nominal account, it includes two things, expenses and losses, and here income and gains. Okay, so nominal account includes only income, expenses, losses, gain, whatever. So these are the types of account, student. You can take this screenshot: personal account, real account, and nominal account. The major portion is personal and impersonal, but impersonal account further has been classified into real and nominal. Okay, so personal account includes three types of: natural personal, artificial personal account, representative personal account. Real account includes tangible assets, intangible assets. Nominal account includes expenses and losses, income and gains. So if you have taken the screenshot or noted it, so I'm going to explain. So just raise your hand if you all have taken the screenshot. Screenshot are noted. So raise your hand, students. Okay, done. Very good. So now come to the description. So first, I'm going to explain about the personal account. Okay. First one is, I'm going to explain personal account. Okay. So personal account, it refers to the name. सर स्क्रीन सही से दिख नहीं रहा है सर. Everybody having the same problem? No, sir. Yes, sir. आप नो सर। सर स्क्रीन पूरा नहीं आपने दिख रहा है. पूरा दिख रहा है या नहीं? नो सर, पूरा नहीं दिख रहा है. जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा है। सर पूरा नहीं दिख रहा है. ब्लर हो जा रहा है सर रह रह के. हो सकता है नेटवर्क इशू। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मैंने उसको जैसे ये, एक मिनट रुक जाओ। अभी दिख रहा है सर जो लिखे आप, इट रिफर टू द नेम. ये बताओ, अभी दिख रहा है पूरा स्क्रीन जो टाइप्स ऑफ अकाउंट का चार्ट है? यस सर. यस सर. अब ये बताओ कि अब यहाँ मैंने अभी लिखा पर्सनल अकाउंट, इट रेफर्स टू, ये दिख रहा है? यस सर. अब सही है ना? यस सर. चलो, वो नेटवर्क इशू होगा बेटा। सो पर्सनल अकाउंट, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, कंपनी and all those account which represent indirectly
to a person is called personal account. So देखो मैंने इसमें 3 things, I have used 3 things: name of person, name of company or organization, and all those account which represent indirectly to a person. So accordingly there are 3 types of account: natural, artificial or representative. So first I am going to explain about natural personal account. So natural personal account, it is the name of human being. Human being. Example: Anish, कुशल, ठीक है, दिव्यानी, कीर्ति, तुषार, किशन, आप सब लोग अपना अपना नाम भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा. So देखो स्टूडेंट, these are the natural personal account because we all people are made by God and our birth and death are the result of the God action, reaction, whatever. So हम लोग का जो बर्थ और डेथ जो होता है वो गॉड के थ्रू आता है, नेचर के थ्रू होता है ना. So we all people are called natural personal account. Okay, so we all having our own name, our own physical shape, है ना, physical appearance. So we are natural personal account. I hope you have understood natural personal account. Second, B is artificial personal account. Okay, so artificial is what? So it is the name of company, bank, school, hospital, institution, group of people or association, एक्सेट्रा. देखो इनको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल? दे आर नॉट नेचुरल. आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, कृत्रिम. बट इनके साथ जो स्कूल के नेम है, कंपनी के नेम है, हॉस्पिटल, बैंक, इन सभी लोगों का जो फीचर्स हैं वो हम नेचुरल पर्सनल जैसा ही है, हम लोग के जैसा ही टैली करता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारा अपना फिजिकल अपीयरेंस है, बट इन स्कूल, कंपनी, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ों का अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. दे आर क्रिएटेड ऑन पेपर बाय द लॉ and their birth and death operates by the law, not by the God. That's why they are called the artificial. And just like we people, the each company, each bank, each school, each hospital, institution or association having their own separate name, like International Hindu School, DPS, Sunbeam, every school having their own name, like we people. Every bank, like Bank of Baroda, State Bank of India, Punjab National Bank, there are so many banks and each bank having their own name, and a school, hospital, institution like that. But they don't have physical appearance or physical shape. But some student will ask that, sir, we can see the bank or a school. No, you can see the building of the school or building of the bank or hospital, that are the assets.
फिक्स टेंजिबल एसेट्स, सपोज दैट कि अगर किसी बैंक को, मान लो लंका पे कोई बैंक है वाराणसी में, और उसको शिफ्ट करना है हमको DLW, तो वहां से बैंक क्या पूरी बिल्डिंग उठा कर जाएगी? नो, बैंक का क्या जाएगा, सिर्फ नाम वहां जाएगा, है ना। यानी कि बैंक की जो बिल्डिंग्स होती है वो अपनी थोड़ी होती है, तो किराए की बिल्डिंग लेकर चलते हैं, वो पेपर पे ऑपरेट होती है और वो और स्टार्ट करते हैं सिर्फ अपने नाम के ऊपर। सो आर्टिफिशियल पर्सन में दिखाई नहीं देती, ये बनावटी है, बट इनके फीचर्स जस्ट लाइक वी पीपल, दे आर क्रिएटेड बाय द लॉ, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। जस्ट लाइक वी पीपल की हम लोग अपना सिग्नेचर करते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन की भी कंपनी जो होती है उनकी भी अपनी एक कॉमन सील होती है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए उसे पुटअप किया जाता है, ठीक है, अथराइज पीपल के थ्रू। तो हम लोग की तरह कोई थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकता है, तो कंपनी के ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी केस कर सकता है, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, ठीक है। कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है अपने ओन नेम से। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे और कंपनी में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस है, बट इनका कोई फिजिकली अपीयरेंस नहीं है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आई होप यू ऑल हैव agreed and understood. And now some third part of the personal account is representative personal account. Representative personal account. Okay, so it is, yeah, it refers to those account which indirectly represents to a person or institution. ओके, सो ये एक ऐसा अकाउंट है जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में क्या है, अब इसके भी बता देते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल, ड्राइंग, एंड कैपिटल हो गया आपका, ड्राइंग हो गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मीन्स वन अनदर वर्ड, जस्ट लाइक प्रोनाउन होता है ना, उसी तरह कोई ऐसा वर्ड यूज करता है जो रिप्रेजेंट करता है मेनली पर्सन को। तो ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेज, प्रीपेड expenses, accrued income and unaccrued income, एक्सेट्रा। सो देखो ये कैसे होता है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। डेटर या ओनर कैपिटल कैसे हुआ। सो अब आप बताओ कि कैपिटल इज व्हाट। सो कैपिटल, जब प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। यानी हमको पैसा ओनर दे रहा है, लेकिन हम ओनर का नाम लिखने की बजाय हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा ही होगा कि आप ओनर का नाम नहीं लिखकर कैपिटल वर्ड यूज करते हो। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली, उस पर्सन को जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वो पर्सन कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो इनडायरेक्टली किसी पर्सन के बारे में जानकारी दे रही है। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट refers to those which acknowledge you about some person, some people or some institution. ओके, सो कैपिटल आपको ओनर क्या एक पर्सन है,
So we can say capital is representative personal account. Now drawing, drawing का मतलब क्या होता है? जब यही ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है तो इस प्रोसेस को ड्राइंग कहते हैं. सो व्हेन ओनर विड्रॉ गुड्स और कैश फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग. सो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को, कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया है, बट ओनर का नाम हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, हमने क्या लिखा? ड्राइंग. लाइक डेटर. अब डेटर क्या होता है? So debtor refers to those customer to whom we have sold goods on credit. तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको याद होगा, यू हैव रिमेंबर आई थिंक, कि हम डेटर वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं. तो ये डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस कस्टमर को, जो कि एक पर्सन है. या हो सकता है कि देखो सेल हम दो तरीके से, या तो इंडिविजुअली करते हैं किसी पर्सन को, या किसी बिजनेस यूनिट को करते हैं. अगर हम होलसेलर हैं तो हम रिटेलर को बेचेंगे, तो रिटेलर भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा अगर से उसका अपने फर्म का नाम है तो. या तो इंडिविजुअली दे रहे हैं हम उसे, तो इंडिविजुअल दोनों ही केस में, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, होगा तो पर्सन. तो डेटर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को. क्रेडिटर भी सप्लायर को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमने गुड्स उधार खरीदा है. व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर देन इट विल बी नोन एज क्रेडिटर. एंड नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? इसका मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट. सो आई होप यू विल सी. आउटस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल कि रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट. तो ये क्या बताता है? इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट आपने जिससे किराए पे लेकर बिल्डिंग बिजनेस आप रन कर रहे हो, उस मकान मालिक को यानी लैंडलॉर्ड को, रेंट हम किसको देते हैं? अब बताओ. लैंडलॉर्ड को देते हैं, ठीक है. तो लैंडलॉर्ड को आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? ड्यू. आपको मालूम ही है, ड्यू यानी बकाया. तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिफर्स टू लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड को हमको इतना रुपया देना है. सो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लैंडलॉर्ड को. लैंडलॉर्ड क्या एक पर्सन है? ओके, इट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिटर. यानी किसी का पैसा हमारे यहाँ बाकी है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, बट उसके नाम अलग अलग होते हैं. कुछ ट्रेड क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, और कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हमने लिखा. तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटिंग टू दैट लैंडलॉर्ड टू हुम वी नीड टू मेक पेमेंट. सो लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मान लो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स व्हाट? कि एक एम्प्लॉय को सैलरी हमें देनी है, अभी दिया नहीं है, उसका ड्यू हो गया है, तो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एम्प्लॉय क्या एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्सन. तो नाउ वी कैन से आउटस्टैंडिंग इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव. प्रीपेड एक्सपेंसेस, मान लो कि किसी एम्प्लॉय को आपने एडवांस सैलरी दे दी, तो एडवांस सैलरी आप अकाउंट लिखोगे जब बुक में, तो एडवांस सैलरी पढ़ने पर आपके दिमाग में इमेजिनेशन किसका आएगा? उस वर्कर का आएगा जिसको कि आपने एडवांस दिया है ना, कि उससे आपको पैसा लेना है. तो इट रिप्रेजेंट्स टू दैट पर्सन. तो ये तुम्हारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि हमें अभी देना है, हम दे नहीं दिए. इसको देखने से बार बार रिमाइंडर होगा. सॉरी, एडवांस का मतलब हमने एडवांस दे दिया, हमको उससे लेना है. ये हमारे लिए एसेट्स में आता है. फिलहाल प्रीपेड एक्सपेंसेज या एडवांस एक्सपेंसेज एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी पर्सन को. अक्रूड इनकम भी, जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया और इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, तो आपको लेना है. तो अक्रूड इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को. बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है. अगर किसी पर्सन से आपने किसी पर्सन को उधार दिया है तो उससे आपको इंटरेस्ट लेना है, तो भी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा. अनअक्रूड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी जिससे आपको एडवांस मिला है उस पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस पर्सन से आपको एडवांस मिला है, आपको उसको वापस करना है, या तो सर्विस या तो पैसा. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. यानी कोई भी एक्सपेंसेज इनकम से पहले अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड प्लस डेटर, क्रेडिटर ये सब लगा हुआ है, यानी जो किसी न किसी पर्सन के बारे में जानकारी दे रहा है कि फ्यूचर में हमें उनको पेमेंट करना है या उनसे हमें लेना है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव में आएगा. ठीक है. सो आई होप
these three accounts is clear: personal, real, representative, artificial, or 1 minute. Yeah, you can take the screenshot of it: natural personal, artificial personal, and representative personal. तो विद एग्जांपल ये क्लियर हो गया. अब हम लोग आते हैं रियल अकाउंट पे. Okay, so students, now come to the real account. So real account is what? रियल का मतलब लग रहा है जो रियल में है, यानी इसके अंदर क्या है? टेंजिबल assets. Tangible assets, it refers to those assets which we can see or touch, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. एग्जाम्पल: कैश, गुड्स, ओके, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, एक्सेट्रा. यानी जो भी चीज़ दिखाई देती है, छू सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सन को पकड़ कर कहोगे कि हमने तुमको छू लिया, तुम पर्सन टेंजिबल हो. नो, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव बीन कैटेगराइज इनटू द पर्सनल अकाउंट. ठीक है. तो टेंजिबल एसेट्स, द फिजिकल ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी और टच. ओके, सो नाउ सेकेंड, बी, intangible assets. Intangible asset, I have taught you people in second chapter. Intangible assets which cannot see or touch, which cannot be seen or touch. एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, सिर्फ गुडविल आप लिख लो, पेटेंट, रॉयल्टी. ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले का, सिर्फ आप नाम याद कर लो. यहाँ भी जिसको डाउट होगा अलग से पूछ लेगा. गुडविल, पेटेंट, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा. ठीक है. These are the example of real account, means intangible assets. You can take this screenshot, student. Now last, nominal account के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay, so nominal account. ठीक है. सो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इट इज ओनली द नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज. ये केवल एक नाम होता है इनकम और एक्सपेंसेज का. जैसे एग्जाम्पल, रेंट पेड. अब रेंट पेड कर रहे हो, किसको पेमेंट करोगे? लैंडलॉर्ड या किसी को भी दोगे ना. तो रेंट पेड दे रहे हो तो आप सोचो कि हम क्या देंगे रेंट के बारे में. रेंट कोई सामान तो है नहीं. रेंट एक नाम हमने दिया, एक प्रोसेस है, पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमने लिया उस पर्पस का एक नाम दे दिया, जिस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. यानी देंगे तो हम उसको कैश, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे कैश, लेकिन हम उसको कैश नहीं कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? उसको हम रेंट पेड. यानी रेंट एक नाम है एक्सपेंसेज का, तो ये एक्सपेंसेज है. ठीक इसी तरह सैलरी पेड.
अब सैलरी हम एम्प्लॉय को देंगे तो एम्प्लॉय को कोई सैलरी सामान तो है नहीं कि हम उठा कर दे दिए, सैलरी एक नाम है सिर्फ, ठीक है, बट इसके बदले में हम पेमेंट क्या करते हैं, पैसा। तो हम पेमेंट पैसा कर रहे हैं लेकिन नाम दे रहे हैं उस पेमेंट को, जिससे हमको पता चले कि कितना रुपया किस चीज़ के लिए खर्च हुआ है या कहाँ से पैसा आया है मेरे पास। सो रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस, ये सारी चीज़ें, वेजेस पेड हो गया, कमीशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैरेज हो गया, कोई सामान हम मंगाते हैं तो उस पर कैरेज वगैरह देते हैं, फ्राइट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसी तरह इनकम क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रिसिव्ड। सो इंटरेस्ट रिसिव्ड में क्या मिलता है तुमको, मिलेगा तो पैसा, लेकिन आप उसको नाम क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसिव्ड, तो ये सारी चीज़ें देखो जो हमको रिसीव हो रहा है, ये कोई सामान तो है नहीं, मिलेगा हमको पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, तो लेकिन हम उसको नाम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो भी इनकम का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए वी कैन से दैट नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस, इट इज़ द नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ओनली एंड नथिंग एल्स। सो इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड कि हाउ मच मनी वी हैव इनकर्ड ऑन व्हाट आइटम, what purpose, and how much money we have received from which source, so that we record the nominal account. Okay students, so I hope personal, real and nominal all are clear. Students, just raise your hand if it is clear. Yeah. Okay, so now last point, I am going to write the rule of debit and credit. You all should note it down and you have to learn it. Tomorrow in the class I'll be discussing with the help of types of account and debit and credit rule. Okay, so now start noting down. Wait. Okay, so here you can write golden rule of double entry system. ठीक है, या और हम इसको कह सकते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, so do a rule of debit and credit. So first देखो, पर्सनल अकाउंट में चाहे जितने भी पार्ट्स हो, बट पर्सनल अकाउंट के लिए कॉमन रूल रहेगा, कोई भी अकाउंट के लिए कॉमन रूल रहेगा। फॉर पर्सनल account, whether it is natural personal, artificial or representative, it doesn't matter, the rule will be same for all. So a debit is the receiver, ठीक है, and credit is the giver,
ओके स्टूडेंट्स, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर हो गया. डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर. एंड नाउ सेकेंड, for real account, debit what comes in, credit what goes out. ये रूल है सेकेंड. थर्ड है फॉर नॉमिनल अकाउंट. अब लर्न कर लेंगे ये सारा अच्छे से और इसको अप्लाई कराएंगे. कल से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल दोनों. एक मिनट. सो यहाँ पे डेबिट all expenses and losses. ओके, और फिर इसके बाद जस्ट रिवर्स क्रेडिट all income and gains. Done. So these are the three rule जो आपको लर्न करने हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल के. So okay student, you can note it and you can take the screenshot of it.